and welcome to a brand new episode of Election Yatra, the Bihar edition. Mithilanchal paintings and makhanas. That pretty much sums up the theme of today's episode. Mithilanchal region has around 60 Vidhan Sabha seats, and that is spread across almost 7 districts. Most of these seats are up for polls in the first phase itself. That's why not just the NDA, not just the INDI, but this time around, even Owaisi's AIMIM is eyeing this entire region. Yes, he has announced his entry in the Mithilanchal region as well. Let me take you through Mithilanchal. Let's talk about the burning issues here. Let's focus on both the Madhubani paintings, the artists connected to it, and the makhana, the superfood, and the farmers who are associated with makhana. Let's find out what's their expectation from the candidates, from the government this time. When we talk about Bihar's art and culture, one cannot ignore the significance of the Mithilanchal region, and specifically the Madhubani district. This has now become a major export hub for traditional Madhubani art or Mithila paintings. This painting as a form of wall art was practiced widely throughout the region for decades. It was traditionally created by the women of various communities in Mithila region of India and Nepal and originated in the Madhubani district, and hence it is popularly called Mithila painting or Madhubani art. The district has made its name world over for the quality of its craft. And as the clock ticks to the elections, the people would be hoping to elect a leader who can support this bustling ecosystem of fine arts. In the 2020 Bihar Assembly polls, Madhubani district voted overwhelmingly in favor of the NDA. 8 out of the 10 seats went to the NDA, while the Mahagathbandhan managed to secure only 2 of them. Out of these 8 seats, it was the BJP that had the lion's share of 5, followed by the JDU with 3. The RJD was the only Mahagathbandhan party that managed to win in this district with 2 seats. So are the artisans convinced it is the NDA that will help Madhubani catapult its growing economy further? We've all heard about the Mithila art form, the Madhubani paintings. Some of us either have the paintings in our homes or the Mithila art form on our saris in the wardrobes. But have you ever met the artists behind these art forms? Do you know what kind of lives they live? What are their expectations? Well, let me tell you, there are some artists who are the only practitioners of some of the art forms that are becoming extinct now. How do they keep these art forms alive? Because Mithila art is an umbrella term. There are several styles and types that fall under it. Let me in fact give you a sneak peek into the lives of the artists behind these beautiful paintings, the beautiful artwork. Let's go, let's find out what are their expectations from the upcoming elections. ये इंस्टीट्यूट जो आर्टिस्ट हैं उनकी कैसे हेल्प करता है? देखिए, मिथिला चित्रकला में जो पेंटिंग है वो कई सालों से होते हुए आ रही है. लोग ट्रेडिशनली इसे करते ही हैं, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट लेवल पर खुलने से उनकी जो ट्रेनिंग है वो उनका जो लेवल है, ट्रेनिंग का लेवल बढ़ गया है. पहले भी प्रशिक्षण कार्यक्रम सब हुआ करता था, 10 दिन 12 दिन वर्कशॉप्स के माध्यम से लोग अलग अलग तरीके से करते थे. लेकिन यहाँ जो है फुली 3 साल का डिग्री कोर्स, जिसमें बच्चे न सिर्फ पेंटिंग करना सीखते हैं, उस पेंटिंग का जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो जानते हैं, साथ में उसको मार्केट से कैसे लिंक कर सकते हैं, उसके जो टूल्स है वो जानते हैं, कम्युनिकेशन स्किल पे कैसे काम करना है, आप अपने प्रोडक्ट को, अपने कार्य को कैसे मार्केट से चाहे प्रदर्शनी में लगाएं,
किस तरह से अच्छे से आप बता सकते हैं, तो वो सब की जानकारी इस संस्थान के खुलने के बाद ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाई है और एक सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेनिंग दिया जा रहा है। पद्मश्री अवॉर्डी दुलारी देवी इज ज्वाइनिंग मी ऑन द ब्रॉडकास्ट एट द मोमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका दिया हुआ जो भेंट था मधुबनी आर्ट की साड़ी अभी वित्त मंत्री जी ने पहनी थी जब बजट वो पेश कर रही थी, आपको उम्मीद थी कि वो बजट पेश करते हुए पहनेंगे? आए थे मैम सीतारमन जी, तो मिथिला चित्रकला, मेरा नाम पद्मश्री दुलारी देवी है, मेरा घर रांची है, मैं मछुआरा परिवार से हूँ। तो सभी को विचार था, केरला कॉटन था, तो प्रतीक भाई ने बोला जो कि मैम थोड़ा पहन लीजिएगा बजट में, तो वो पहने मैम बजट में साड़ी। वो माछ का बॉर्डर था, मिथिला का माछ मखान पान तो बहुत फेमस है, तो मैम के दिया गया। जैसे सीता माता को वो सारी विदाई देते हैं अपना बेटी को, वैसे उनका नाम तो वही है सीता रमन, तो उनका यहाँ से विदाई दिया गया। तो बजट में पहले मैम बहुत अच्छा लगा हम लोग का, पूरा देश का अच्छा लगा जो कि बजट में पहले है मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो बहुत अच्छा लगा सबको। जो कलाकार हैं जो ये आर्ट फॉर्म आपसे सीखते हैं, जो इसको प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए, उनके गुजारे के लिए क्या करना चाहिए सरकार को, और आप लोगों की क्या उम्मीद है? चुनाव भी होने वाला है। देखिए हम लोग का तो बहुत गरीबी था, घर नहीं था, कलम नहीं था, रंग नहीं था, हमको बहुत कठिन हुआ सीखने में, तब तो हम पद्मश्री मिल गया। वैसा ही हम बोलते हैं जो हमारा मिथिला चित्रकला के जहाँ का कलाकार हो, बच्चे नया बच्चा नया विद्यार्थी हो, कलाकार हो, तो उनको जैसे हमको दिए हैं गरीब गुरबा लोग को जो ढूंढ ढूंढ के पद्मश्री दिए हैं सरकार, मोदी जी से भेंट हुए, बहुत अच्छा लगा। वैसा ही नया कलाकार को बच्चा लोग को देखे, उनको भी आगे बढ़ाइए, यही हम लोग का आग्रह है। ये जो कलाकार हैं इनके लिए और क्या किया जाना चाहिए इनको प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि चुनाव का भी वक्त आ रहा है, आपकी क्या मांग है? जो भी आए सत्ता में क्या करना चाहिए उसको? सरकार को यही करना चाहिए, जो हम लोग तो इतना बहुत संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, तब ये पद्मश्री मिला, नेशनल अवार्ड मिला, स्टेट अवार्ड मिला। अब जो हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हो बच्चे लोग को, तो इनको आगे बढ़ाने चाहिए। कॉलेज सब में इसको नौकरी होना चाहिए, इसको काम देना चाहिए, जो उत्साहित हो। इन लोग बहुत परेशानी से सीखते हैं हम लोग से, तो वही आदेश देंगे हम, जो बच्चे लोग को आगे बढ़ाइए, यही कहेंगे। आपकी क्या उम्मीद है जो आने वाला चुनाव है, कि जो कलाकार हैं उनके लिए क्या किया जाए? हमारे आशा है कि जो हमारे बच्चे लोग जो पेंटिंग सीख रहे हैं 3-3 साल के लिए, तो उन लोगों को जीवन नर्क हो जाएगा। कहीं ना कोई विभाग में इन लोग को भी स्थान दे दे, जैसे हमारे बहुत भविष्य उजागर होगा बच्चे लोग का, और नाम फैलेगा। जो सरकार हो, सरकार तो हेवी है, सब काम कर रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो सब कुछ कर ही दिए, खाली हमारे बच्चे सबको 10 ठो बच्चे हैं उन लोग को आगे बढ़ा दे, हम लोग वही में बहुत खुशी रहेंगे। कलाकारों को सम्मानित तो किया जा रहा है, लेकिन उससे उनके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है या क्या आना चाहिए? तो आने वाले चुनाव से जो कलाकार समुदाय है उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संजय कुमार जायसवाल, हम यहाँ मिथिला चित्रकला संस्थान में फैकल्टी में है। तंत्र पेंटिंग्स मेरा स्पेशल है। सरकार चाहे जो भी आए, हम सभी कलाकार ये अपेक्षा करते हैं कि सांस्कृतिक अपनी संस्कृति का महत्व, चाहे जिस पार्टी की भी सरकार बने, उसको स्थान देना चाहिए, महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पे बहुत कम ध्यान दिया गया, और जिन सरकार की वजह से ये महत्वपूर्ण ये कदम उठाए गए हैं, वो बहुत सचमुच में बहुत महत्वपूर्ण है हमारे संस्कृति के संरक्षण के लिए। चिंता क्या है आप लोगों की? हमारी चिंता कला को लेके है। जैसा कि अभी आप सब पद्मश्री सबसे ही बात किए, सब तो यही चाहते हैं कि ये कला बचे, और इस कला को बचाने के लिए ये कॉलेज भी खोला गया है, जो नए पीढ़ी के कलाकार उससे जुड़े और ये कला बचे। लेकिन अभी निर्मला सीतारमन जी ने मिथिला पेंटिंग पहना वहाँ पे, यहीं से हम लोगों ने ही रिक्वेस्ट किया था कि आप वहाँ बजट में पहनिए। उनके पहनने के बाद बहुत डिमांड बढ़ी
पेंटिंग्स की, साड़ी की, और उसका फायदा कलाकार को होना चाहिए था। जो मधुबनी के कलाकार हैं या फिर मिथिला चित्रकला संस्थान के जो कलाकार हैं, उन लोगों तक वो फायदा पहुंचना चाहिए था। वो फायदा वहां पहुंचा ही नहीं। वो क्या हुआ कि जो प्रिंटिंग करने वाले लोग हैं, जो मिल है, वो सब वो फायदा उठा रहे। जो पूंजीपति खुद हैं, वो लोक कला को प्रिंट करने लग गए साड़ी पे। अभी जो साड़ी 10,000 रुपया में, मान लीजिए निर्मला सीतारमण जी को जो साड़ी हम लोगों ने दिया था वो 10,000 रुपया की थी, अभी वैसा ही साड़ी, वैसे ही प्रिंट का, जो बिना कोई ऑथेंटिसिटी के आपको 1,500 में मिल जाएगा। तो हमारे कलाकारों का तो नुकसान हो गया। तो ये जो भी लोक कला है इंडिया में, जो हस्तकला जिसको बोलते हैं, हैंडीक्राफ्ट, उसका मिल से नहीं प्रोडक्शन होना चाहिए। ये गवर्नमेंट अगर कर दे, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य गवर्नमेंट को तो करना ही चाहिए। ये कर दे तो कलाकार का ये जो बचाने का कला तो बचेगा ही, नहीं तो फिर तो ये प्रिंट में चला जाएगा, और प्रिंट में जाते जाते तो हस्तकला तो खत्म ही हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चिंता है हम लोगों की। While there is growing demand for greater support for the local economy here, many believe there is still a lot left to be desired in Madhubani. Some do believe a lot has been done, while others live in despair. This is, after all, a village of the Padma awardees and national award winners. While some of the highest honors have reached this village, development is yet to find its way. तो इतना अवार्ड वगैरह जो मिला है इस गांव में, तो बहुत सारे पद्मा अवार्डी हैं, नेशनल अवार्डी, आपको खुद को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है। उसके बाद आप लोगों का लाइफ कितना बदला इस गांव में रहने वाले लोगों का? अभी तो स्टेट अवार्ड जो मिला वो जो मिलने है के बाद जो कुछ सम्मान मिलता है, उसके बाद कोई नहीं रहता है क्या होगा नहीं होगा, उसके बाद तो कोई खोज खबर। अभी तो इतना कलाकार है इस गाँव में, इस गाँव को कलाग्राम में घोषित किया गया है। अभी तक बोले थे जो कलाग्राम में ये गांव को विकसित होगा, अभी 2 साल हो गया, अभी तक इस गांव में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो कलाग्राम को जो आप देखिएगा, ऐसा ही रोड तो वो बनने का काम ऐसा ही होता रहे, टूटेगा जुड़ेगा वो बनेगा, ऐसा कुछ नहीं अभी तक इस गांव में ऐसा हुआ है। तो अभी चुनाव आ रहा है, तो आप लोगों की क्या उम्मीद है, क्या मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग को तो मांग था जो ये कलाग्राम को अभी विकास हो, जो पर्यटन जो हो, जो इस गांव में आए देखे। ये 3 पद्मश्री का गांव है, तो इस पद्मश्री सबको एक था बनने का था, उन लोगों का गेट बनने का था, तो वो भी नहीं अभी तक बने हुए हैं। जो पर्यटन हो, जो डायरेक्ट कलाकार से मिले, तो सबको कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। कलाकार को एक स्टॉल रहता, कलाकार को खरीद बिक्री का प्रस्थान रहता, जो यहाँ पर जाए कलाकार बिके, उनका जो पैसा है वो मिले। ये सब का कोई दिक्कत है इस गांव में। उस समय में कलाकारों के हित के बारे में भी सोचा जाता था, और कलाकार और गवर्नमेंट का डायरेक्ट संपर्क था उस समय में। आज के डेट में क्या है, तो इसमें कलाकार घर बैठ के काम करता है। महानगर जितना हुआ वहाँ पर जो है सो मिडिल मैन पेंटिंग बेचता है। कलाकार को कोई तरह का सहूलियत नहीं है आज के डेट में। तो आप लोगों का भी क्या होगा, चुनाव आने वाला है, आप लोगों की उम्मीद यही है। आपका वोट जिसको जाए वो क्या? हमारा वोट जिसको जाए, जो अच्छे नेता चुन के आए, वो जो अच्छे रहेंगे, हम लोगों के बारे में सोचे। कलाकारों को डायरेक्ट खरीद बिक्री हो, गवर्नमेंट के द्वारा, कोई संस्था के द्वारा, इस सब से कलाकार को जो फायदा मिले, डायरेक्ट एग्जीबिशन जाने का मौका मिले, अपना कला का प्रदर्शन करने के लिए मिले, ऐसा गवर्नमेंट चाहिए कलाकारों के लिए। The message from the people here is quite clear. While the people here are making their ends meet through their art form, development has still eluded them, and it's something they would hope for when the next government is formed. But as we move from one part of Madhubani to the other, you realize that the district is not just known for its paintings and artwork, but there's much more to it. Madhubani is also the home to a snack that is now quickly becoming popular not just in India but across the world. While it may now be commonly available across the country, we are headed to the place from where you get this light, crunchy and healthy snack.
super art, let's now shift our focus to the superfood. The superfood that Mithilanchal is also known for, that the entire world wants, the makhanas of Mithilanchal. Well, as far as makhana production is concerned, Bihar dominates the Indian production, contributes 85 to 90% in the country's total output. And not just that, Bihar is also the world's foremost producer of this super healthy snack. While makhana is a healthy snack that's now gaining popularity across the world, the process behind its production is rather labor intensive. Even I tried my hand at making makhana like the local Madhubani people, and I can now tell from experience, it's certainly not easy. Its growing popularity has now also drawn industrial scale investments, but there are many in Madhubani who continue to make the makhana by hand. Are they being protected and supported by the government? So as the owner of this unit, what would you say has the government done to, to promote this? Because Bihar it dominates the production market in India. Ma'am, as a unit owner and a local person from this thing, I think so central government has done a lot of things, as he has introduced the machines and everything. But due to some lack of transparency between both the governments of Bihar and state government, these machines were not being pushed off. What would you say about this announcement of forming the Makhana Board? Is it going to improve the plight of the farmers? Is it going to help? Surely, ma'am, it will help, because now farmers are also coming down, understanding the meaning of board. People has to come down, government has to come down and let people know what is this board actually for. Because most of the farmers, they know these boards are just a political gimmicks. That's the problem, and for that government has to come down. Take has to have a hand in glove with the farmers and let them know the actual benefits and how they can do it. As an educated person, I may be knowing what this board is important for, what are the things, but actual people are the farmers who are illiterate and don't know, and they are a bit hesitant to talk to the hierarchy of the government. So that's the reason. And board, as an educated person and being an MBA finance and worked in Bombay, I know it can bring a financial revolution in my state. This board, as this product is a monopolistic product currently with India and with Bihar also, and if the government pays attention on it, it can grow to a tremendous stage, and then mechanization and things will be. मखाना किसान जो हैं उनकी क्या समस्या है? उनकी समस्या है जो अभी रेट थोड़ा कम मिल रहा है और प्लस उसको मदद नहीं मिल रहा है। जैसे मखाना करेगा उसके लिए पूंजी की व्यवस्था नहीं हो रहा है, लोन भी नहीं मिल रहा है किसान को। लोन अगर मांगता भी है किसान तो उसको ये चाहिए वो चाहिए, जीएसटी चाहिए तो किसान कहाँ से लाएगा ये सब? तो इसीलिए किसान सब मतलब कम कर रहा है, और अभी इसका डिमांड तो है पर किसान उतना पूरा नहीं कर पा रहा है। जब बाजार में बिकता है तो हजारों रुपए किलो में बिकता है, आप लोगों को कितना मिल पाता है? हम लोगों को अभी ऐसे 700 750 ऐसे मिला है, अभी उतना दाम नहीं मिल पा रहा है जितना इसमें मेहनत है, उतना दाम हम लोग को नहीं मिल रहा है। इसीलिए अभी चुनाव आ रहा है तो क्या आप लोग चाह रहे हैं कि कौन आपको लग रहा है कि आपके लिए काम करेगा? वो चुनाव आ रहा है तो कौन करेगा? सब तो वही बात बोल रहा है कि चुनाव से पहले हम ये कर देंगे, रोजगार देंगे, सबको पैसा लोन का सुविधा देंगे, लेकिन ये सब बड़े बोलता है लेकिन होता नहीं है। अक्सर में इसे ही बोल देता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जैसे कि अभी चुनाव है तो अभी पैसे दे रहा है, लेकिन उसके जो रोजगार देगा, पूंजी देगा, लोन देगा, रोड सड़क ये सब बनाएगा, हम लोग को सुविधा देगा, तो हम लोग खुद उससे हम रोजगार कर सकते हैं। लेकिन 10,000 लेंगे हम रोजगार नहीं करेंगे, हम लोग को रोजगार देगा, पैसे देगा, तो उसको हम अपने पैसे से मतलब 10,000 से क्या चालू होगा? 10,000 से कुछ भी नहीं होता। आजकल तो कपड़ा लत्ता भी नहीं आता 10,000 का, ऐसे है। तो अभी जो मौजूदा सरकार है, मखाना बोर्ड वगैरह का अनाउंसमेंट भी हुआ, ज्यादा काम नहीं हुआ क्या? नहीं, वो लोग तो बड़े लोगों के लिए हुआ ज्यादा है। हम लोग को क्या है, हम लोग किसान से मटेरियल लेते हैं, उसको तैयार करते हैं, बस सस्ता भाव में बेच देते हैं, ले जाता है, और वो लोग बाहर सप्लाई करता है, तो वो लोग को ज्यादा कमाई होता है। हम लोग से अच्छी खासी कमाई वो लोग कमा लेते हैं। वो लोग को लोन भी सुविधा अवेलेबल रहता है। वो लोग एक बोली बोल दे तो वो लोग को झट से लोन मिल जाती है, हम लोग को लोन नहीं मिल पाता है। Be it the process of making makhana or the world-famous Madhubani paintings, the processes are labor-intensive and the people here want better support from the state.
Now they have the time to pick their leader once again. But this time, the battle is a little less straightforward than it once used to be. The battlefield in Mithilanchal is heating up, and the polls have become interesting not just because of the entry of a new political party, which is Jan Swaraj, but also because of the entry of Asaduddin Owaisi in Mithilanchal. Now, Asaduddin Owaisi, remember, in 2020 contested on 24 seats, won 5, which was a huge surprise. But then 4 of his MLAs defected to the RJD. This time, while making an entry in Mithilanchal, he's challenged the RJD. Owaisi says, 4 todne ka jawab 24 se dunga. In the 2020 assembly polls, Owaisi's AIMIM made major inroads in Bihar's Simanchal region. All 5 seats the party managed to win out of the 24 they contested were in Simanchal. But this time, Owaisi is looking to take it up a notch further as he eyes the Muslim vote. This time, Asaduddin Owaisi has announced that his party will contest 4 assembly seats in Mithilanchal as he sets his sights on Darbhanga and Madhubani districts. After all, as per the 2011 census, Darbhanga district had 1/5 population of Muslims, or about 22% of the population followed Islam. In the Madhubani district, 18.25% of the population belong to the Muslim community. And Owaisi believes this time is ripe for his party to vie for the Muslim vote in the Mithilanchal region. Ultimately, the party is also looking to cash in on the 17% Muslim population across the state of Bihar. While Owaisi hopes to build on his 2020 performance, the question is, can he play spoilsport in what's largely looking like a 3-way fight here between the NDA, the Mahagathbandhan and Prashant Kishore's Jan Swaraj? Well, that's all we could pack for you in this episode. How important, how crucial will this M factor be, the Mithilanchal factor, and in whose favour remains to be seen. The Election Yatra Bihar edition will continue. Stay tuned, only on Times Now.